سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا
لائق ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے اس کائنات کو رچایا اور بسایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین و ختم المرسلین، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر جس کتاب کا نزول فرمایا ہے، اے نبی پاک آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام فحش کاموں سے نماز روک دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کر کے فرض کیا، اور یہ عبادتیں اللہ نے دنیا میں فرض کی۔ مثلاً روزے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ اس دنیا میں فرض کیا، صدقہ و خیرات اللہ نے اسی دنیا میں فرض کیا، لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں بلا کر کے تحفے کے طور پر اللہ نے فرض کیا تھا۔ اور اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 52 جگہوں پر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، میرے بندو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ متعدد جگہوں پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندو نماز قائم کرو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجدوں سے خالی رہتی ہے، ہمارا مسجدوں سے دور رہتے ہیں۔ جانتے ہو نماز کا چھوڑ دینے والا انسان اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ان بے نمازیوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے میرے بندو نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، اور نماز چھوڑ کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت سے پتہ یہی چلا جو لوگ تارک صلاۃ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں۔ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہی نماز ہے۔ نماز کے ذریعہ پتہ لگایا جا سکتا ہے، نماز کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جو مشرک اور کافر کے درمیان، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، جسے صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے۔ نماز یہ اردو لفظ ہے، اسے عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔
सलात के माने अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह की इबादत करना। और ये इस्लाम में दाखिल होने के बाद कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेने के बाद फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो आदमी नमाज को कसदन जानबूझ करके छोड़ देता है उसने कुफ्र किया। और कुफ्र के माने होते हैं अल्लाह का इनकार करना, शरीयत इस्लाम का इनकार करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करना, उसे कुफ्र कहा जाता है। गोया कि तारिक सलात, नमाज ना पढ़ने वाला इंसान ये अल्लाह का इनकार करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है, अपने शरीयत इस्लाम का इनकार करता है। कितना बड़ा मुजरिम है, कितना बड़ा अल्लाह का बाग़ी है, कितना बड़ा अल्लाह का दुश्मन है जो नमाज को कायम नहीं करता, जो तारिक सलात बना बैठा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को दे करके फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबे किराम ये बताओ कि अगर किसी के घर के सामने कोई नहर बह रही हो, कोई तालाब हो या कोई नदी हो और वो आदमी उस नहर के अंदर दिन रात मिला करके 5 बार गुस्ल करता हो, 5 बार नहाता हो, आपने फरमाया मेरे सहाबा क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? क्या उसका कपड़ा गंदा रहेगा? क्या उसका जिस्म गंदा रहेगा? सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी, जो दिन में 5 बार नहा रहा हो, दिन और रात मिला करके 5 बार गुस्ल करता हो, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आपने फरमाया मेरे सहाबा, जो आदमी नमाज की हिफाजत करता है, 5 वक्ता नमाज की अदायगी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गुनाहों को उसी तरीके से पाक व साफ कर देता है जिस तरीके से दिन और रात मिला करके 5 बार गुस्ल करने से इंसान मैल कुचैल से पाक होता है। ये नमाज हमारी गुनाहों को पाक व साफ करता है, हमारी गलतियों को झाड़ देता है, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा वज़ू बनाता है और अपने अंगुलियों को धोता है, कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है, अपने चेहरों को साफ करता है, अपने पैरों को धुलता है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसने उसके हाथ जो गुनाह किए होते हैं, हाथ धोने की वजह से, वज़ू बनाने की वजह से उसके गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन झाड़ देता है। पैरों से चलकर गलत रास्ते की तरफ जब चलता है तो वज़ू बनाने की वजह से उसकी ख़ताओं को, जो गलत रास्ते पे चला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। नमाज पढ़ने से कितने बड़े फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे मिल रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर के पास आप जाओ तो आपको मशवरा देंगे, अगर आपके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो अगर वो मेडिकल साइंस डॉक्टर है तो आपको हुक्म देगा कि तुम्हारे मज़हब में, तुम्हारे इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वर्जिश 5 टाइम वर्जिश करने का हुक्म दिया है। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगे, सुबह शाम रुकू करोगे, सजदे करोगे, तो तुम्हारी पैरों में कभी दर्द नहीं होगा, तुम्हारी कमर में कभी दर्द की शिकायत नहीं होगी। ये नमाज वर्जिश करने का भी काम करता है मेरे भाइयों। हमारे जिस्मों को राहत पहुँचाने वाली अगर कोई इबादत है, हमारी सेहतों को तंदुरुस्ती पहुंचाने वाली, हमारे जिस्म में ताकत और कुव्वत पहुंचाने वाली अगर कोई इबादत है तो नमाज है। और नमाज का छोड़ देने वाला कितना बड़ा मुजरिम है। मस्जिद घर के बिल्कुल मुत्तसिल है, घर के करीब है, लेकिन हमारे घर के सारे अफराद बेनमाजी हैं। घर का गार्जियन जो है वो नमाज नहीं पढ़ता तो घर के अफराद कैसे नमाज पढ़ेंगे। इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल के हो जाएं, तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए, उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज पढ़ने की तरबियत करो, नमाज पढ़ने पर उन्हें समझाओ, डांटो, बोलो। और 10 साल का जब हो जाए, नमाज न पढ़ो तो डंडे उठाओ, मार मार करके उसे नमाज पढ़ने की तलकीन करो। यहाँ बेटा 20 साल का हो चुका है, 25 साल का हो चुका है, शादीशुदा बीवी भी घर में मौजूद हैं, बच्चे भी घर में मौजूद हैं, लेकिन नमाज से कोसों दूर है। नसीहत कौन करे जब बाप भी बेनमाजी बना हुआ है,
बाप भी नमाज नहीं पढ़ता, बेटे को डंडे कौन मारे, डंडे कौन बरसाए जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए घर के गार्जियन होने के नाते, घर के जिम्मेदार होने के नाते हमारे ऊपर फ़र्ज बनती है, मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज़ जा रही है तो सुनो, तुम भी अपनी बहनों के ज़िम्मेदार हो, अपनी बेटियों के ज़िम्मेदार हो। तुमसे कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे भी सवाल करेगा, इन औलादों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, इन बेटियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुम क्या जवाब दोगे। एक इंसान जब मर जाता है, लोग उसे कपड़ों में लपेट कर कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं, जनाजे की नमाज मिट्टी दे करके वापस चले आते हैं, तो दो फरिश्ते ज़मीन फाड़ करके ज़मीन से नीचे से निकलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो दोनों फरिश्ते इतना डेंजर होते हैं, इतना ख़तरनाक होते हैं, डरावनी शक्ल के होते हैं, जिनकी शक्ल भयानक होती है कि इंसान अगर देख ले तो उसे वो बेहोश हो जाएगा, उसकी शक्ल कोई देखना गवारा नहीं करेगा। वो इतनी डरावनी और ख़तरनाक डेंजर शक्ल के वो फरिश्ते होंगे जो ज़मीन फाड़ करके नीचे से निकलेंगे। इंसान के जिस्म में रूह डाला जाएगा कब्र के अंदर, उसे जब बैठाया जाएगा, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मय्यत को कब्र में बैठाया जाएगा तो उसमें कब्र में उसे दो वक्त दिखाया जाएगा, दो टाइम दिखाया जाएगा, चाहे वो सुबह में दफन हुआ हो या दोपहर के वक्त उसे कब्र में उतारा गया हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में उसे दो टाइम दिखाया जाएगा, एक असर का वक्त और दूसरा मगरिब के वक्त। चाहे सुबह के वक्त क्यों न दफन किया गया हो, लेकिन कब्र में जब उसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फरिश्ते सवाल और जवाब उससे करने के लिए दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो दो टाइम उसे दिखाया जाएगा, एक असर का वक्त या मगरिब का वक्त। जब उसे ज़िंदा किया जाएगा, जब उठ करके बैठेगा, दुनिया के अंदर वो आदमी नमाज की पाबंदी किया करता था, नमाज की कदर किया करता था, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ा करता था। मरने के बाद फरिश्ते जब कब्र में दोबारा ज़िंदा करेंगे, जब मगरिब का वक्त दिखाई देगा, वो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों मुझे छोड़ो, मेरी मगरिब की नमाज कज़ा हो रही है, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो, उसके बाद मुझसे सवाल करो। फरिश्ते कहेंगे ये आलम बरज़ख है। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के तीन मराहिल होते हैं, एक बचपना, दूसरा जवानी और तीसरा आखिरी वक्त, मरने के आखिरी वक्त। ये तीन मराहिल हैं मेरे भाइयों। और जिस तरीके से ज़िंदगी के तीन मराहिल हैं, ऐसे ही दुनिया के भी तीन मराहिल हैं। पहला मरहला जो है वो आखिरत का मरहला है, आखिरत का। दूसरा मरहला जिसे आलम दुनिया कहा जाता है, जिसमें हम और आप हैं। और तीसरा मरहला आलम बरज़ख, जो कब्र की ज़िंदगी है, वो तीसरा मरहला है जिसे कब्र की मंजिल यानी आलम बरज़ख कहा जाता है। वहाँ भी इंसान को ज़िंदा किया जाएगा। एक नमाजी आदमी को जब कब्र में उठा करके बैठाया जाएगा, फरिश्ते उससे सवाल करने के लिए तैयार होंगे। वो कहेगा मुझे सवाल अभी ना करो, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो, मेरी असर की नमाज कज़ा हो रही है, मगरिब की नमाज छूटी जा रही है। फरिश्ते कहेंगे ये आलम बरज़ख है, ये दुनिया नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तुझसे सवाल करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, जो लोग नमाज की हिफाजत दुनिया में करते हैं, चाहे मर्दों से भी वही सवाल किया जाएगा और हमारी माँ और बहनों से भी वही सवाल किया जाएगा। जो नमाज की कदर करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, अज़ान होती है फ़ौरन सारे कामों को छोड़ करके मस्जिद की तरफ भागते हुए आते हैं, इन्हें कब्र में कोई फ़िक्र, नमाज की भी फ़िक्र होगी, इन्हें कब्र में भी नमाज की फ़िक्र होगी। और जो बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज को छोड़े बैठे हैं, अज़ान होती है बेपरवाह होकर के घरों में मोबाइल चलाते हैं, अपनी बाल बच्चों में रहते हैं, इनसे भी जब सवाल किया जाएगा कब्र के अंदर तो हाय हाय अफसोस, हाय हाय लादरी के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में नमाज की कदर करो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को फरमा रहा है कि ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरे रोज़े, मेरी ज़कात, मेरी सदका व खैरात अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। ये चीज़ अपने अंदर भी पैदा करो कि हम नमाज सिर्फ़ अल्लाह के लिए पढ़ें, रोज़े सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखें,
صدقہ و خیرات صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اول یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں اولاد کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، زمین و جائیداد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کتنا بینک بیلنس کر کے آئے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ پہلا سوال اللہ رب العالمین، وہاں آپ ہوں گے، آپ کا پروردگار ہوگا، ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے سامنے مخاطب ہوں گے، اللہ آپ کے سامنے مخاطب ہوگا، اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ کو اللہ کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے نماز کو قائم کرو، جو کل قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نماز کے تعلق سے پوچھے گا، اور جب دنیا آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا سارے انسانوں کا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اونچے اونچے محلوں میں چڑھیں گے، اور جب جنت کی کھڑکیاں کھول کر کے جب دیکھیں گے تو جب جہنم کا ایک منظر جنتیوں کو دکھایا جائے گا، تو جب جہنم میں جھانک کر کے جنتی لوگ دیکھیں گے تو جہنم کا ایک گڈھا جنتیوں کو دکھائی دے گا۔ اس جہنم میں کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہے، کسی کا پیر پھٹا ہے، یہ منظر، آگ جل رہی ہے جہنم کے اندر۔ جنتی ایک منظر دیکھ کر کے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم دنیا میں کون سا عمل کرتے تھے، کون سا کام کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جنتی اور جہنمیوں سے جو سوال ہوگا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ان کے سوال کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ونطعم المسکین، یعنی کل قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ہو، جہنم میں کیوں گئے ہو، کون سا کام کرتے تھے، کون سا گناہ کرتے تھے، کون سا پاپ کرتے تھے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا ہے۔ تو جہنمی اپنا سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم اقرار کرتے ہوئے کریں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں بے نمازی تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، سب لوگ نماز کو قائم کیا کرتے تھے، ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر، گھروں میں رہ کر کے گپ سڑاکیں کیا کرتا تھا، چوراہوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا میں گناہ کبیرہ، اگر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو غیبت کرنا ہے۔ غیبت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور جتنا بڑا گناہ غیبت کرنا ہے، جتنا بڑا مجرم غیبت کرنے والا ہے، اتنا بڑا مجرم غیبت کو سننے والا بھی ہے۔ لوگ بیٹھ کر کے چوراہے پر ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کی برائی کرتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی برائی کرتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کی برائی کرتا ہے، ہم اس جگہ بیٹھ کر کے اس غیبت کو سنتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، سننے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے اور غیبت کرنے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے آپ سے سوال کرے گا۔ تو ما سلککم فی سقر، کل قیامت کے دن جنتیوں سے جو سوال کیا جائے گا، جنتی لوگ جہنمیوں سے، وہ یہی ہوگا کہ دنیا کے اندر تم کون سا کام کرتے تھے، کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا ہے۔ تو جہنمی کہیں گے ہم دنیا کے اندر بے نمازی تھے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر بے نمازی تھے، نماز کو نہیں قائم کرتے تھے۔ جب جہنمی لوگ جہنم سے اپنا سر اوپر اٹھائیں گے اور جنتیوں کو جب دیکھیں گے کہ جنتی عیش و آرام کے اندر ہیں، اونچی اونچی بلڈنگوں کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جہنمی کہیں گے اے جنتی بھائی، میرا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے، یہ جہنم کی آگ، جہنم کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ہمارا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے، دنیا کے سمندر پانی ہمارے گلے میں ڈال لیے جائیں تب بھی ہماری پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ اے جنتی بھائی، ازروئے محبت ایک قطرہ پانی ہمارے گلے میں ڈال دو تاکہ ہماری پیاس ختم ہو جائے، ہماری پیاس بجھ جائے۔
जन्नती कहेंगे मेरा मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें पानी पिलाऊंगा, पानी पिलाना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर जो है एक कतरा पानी हराम कर दिया है, जन्नत की तुम खुशबू भी नहीं पा सकते हो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, अभी वक्त है, अभी ज़िंदगी है, अभी अल्लाह ने ताकत दी है, अभी कुव्वत दी है, अभी हम नौजवान हैं, अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो न हम सही से रुकू कर पाएंगे, न सही से सजदा कर पाएंगे। बहुत सारे नौजवान तो अपने जवानी पर गुरूर और घमंड करते हैं, अपनी जवानी पर नाज और तकब्बुर करते हैं कि अभी हमारी सारी उम्र बाकी है, सारी जवानी बाकी है इबादत करने के लिए। हमने ऐसे ऐसे नौजवानों को की जनाजा उठते हुए देखा है, ऐसे ऐसे नौजवानों की जनाजा हमने कब्रिस्तान में पढ़ते हुए देखा है, जिन्हें भी दुनिया में जीने का हक था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगी को छीन लिया। एक नौजवान नहा धो करके चौराहे पे जाता है और एक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी दुनिया में जीना चाहता था, लेकिन उसकी जवानी पल भर में ख़त्म हो गई। जिस जवानी पर हम और आप नाज करते हैं, ये जवानी पल भर में ख़त्म हो जाने वाली है। अभी से इस जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, सबसे बेहतरीन नौजवान इंसान वो है जिसका दिल, जिसका दिमाग मस्जिद की तरफ लगा हो, मस्जिद की तरफ लगा हो। कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के तले, आज जो इतनी तेज़ धूप हो रही है, सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी थोड़ा सा धूप होता है, थोड़ी सी गर्मी होती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। खेतों में काम करते हैं, सीजन है खेतों में काम करने का, थोड़ी सी गर्मी होती है, हमसे जो है धूप बर्दाश्त नहीं होता है, हम साया तलाश करने लगते हैं। इतनी दूर होने के बावजूद भी, सूरज इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैदान महशर का आलम होगा, 1 मील 1.25 मील के फासले पर ये सूरज जब आ जाएगा, इंसानों के जिस्मों से पसीना इस कदर टूट रहा होगा जिस कदर छत के बरनालों से, छत के टोटियों से बरसात के सीज़न में पानी गिरता है, ऐसे ही लोगों के जिस्मों से मैदान महशर में पसीना छूट रहा होगा। इस कदर पसीना छूट रहा होगा, लोग पसीने से बेहाल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए तले रखेगा। उनमें से वो नौजवान होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो नौजवान होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी को ज़्यादातर हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारो, सजदे में गुजारो। और सजदा, जब इंसान कोई नमाज में सजदा करता है तो अल्लाह से इतना ज़्यादा करीब हो जाता है, इतना ज़्यादा करीब हो जाता है कि जिस तरीके से दोनों अंगुलियां एक नस दूसरे नस से मिली हुई होती है, एक रग दूसरे रग से मिला हुआ होता है, ऐसे ही बंदा अपने अल्लाह से करीब हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो आपने देखा कि कुछ फरिश्तों को देखा जो अल्लाह के सामने सजदे में खड़े सजदे कर रहे हैं, कुछ फरिश्तों को देखा जो रुकू में हैं, कुछ फरिश्तों को जो देखा जो नियत बात करके खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते कितने खुशनसीब हैं, ये फरिश्ते कितने खुशनसीब हैं जो अल्लाह के सामने सजदे में पड़े हैं। कोई फरिश्ता रुकू में पड़ा है, कोई फरिश्ता नियत बात करके अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे महबूब पैगंबर, दुनिया के अंदर जब कोई मेरा बंदा दुनिया में रुकू करता है, दुनिया में सजदे करता है, नियत बात करके मेरे सामने खड़ा होता है, तो ऐसे ही करीब होता है जैसे आज ये फरिश्ते मेरे करीब हैं, जैसे आज ये फरिश्ते मेरे सामने सजदे कर रहे हैं। ये फरिश्ते जिस तरीके से मेरे सामने रुकू में है, ऐसे ही दुनिया में जब कोई इंसान नमाज पढ़ता है, सजदे करता है, रुकू करता है, ऐसे ही मेरे करीब होता है। मेरे भाइयों, हमारा घर मस्जिद से मुत्तसिल है, हमें नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सहाबे किराम को देखो, एक सहाबी रसूल थे जो मस्जिद नबी से कई किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, उनका मकान था, मस्जिद नबी के कई किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए पैदल मस्जिद नबी में आया करते थे। हमारा घर तो बिल्कुल मुत्तसिल है, मस्जिद से मिला हुआ, मस्जिद से करीब है, लेकिन फिर भी हम बेनमाजी बने बैठे हुए। वो सहाबी फजर में आते थे, फिर नमाज पढ़ कर चले जाते थे, ज़ोहर में आते थे, फिर नमाज पढ़ करके चले जाते थे, असर में आते थे, मगरिब में आते थे, फिर चले जाते थे। इतने दूर होने के बावजूद भी 5 वक्ता नमाज, चाहे बरसात का सीज़न हो,
चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, हर मौसम में वो सहाबी इतने किलोमीटर की दूर से 5-6 किलोमीटर की दूरी से पैदल वो मस्जिद नबी के अंदर आया करते थे। सहाबे किराम ने जब उनकी ये परेशानी देखी कि सहाबे किराम कभी पैरों में चप्पल पहनते हैं, कभी चप्पल भी नसीब नहीं होता है। और आप लोगों को मालूम है, जो विदेशों में गए हैं, जो सऊदी का सफ़र किए हैं, जो कतर वगैरह का सफ़र किए हैं, उनको पता चलेगा, मालूम होगा कि धूप वहाँ की कितनी तेज़ होती है, ज़मीन भी तपती है और आसमान भी तपता है। ऐसे माहौल में वो सहाबी पैदल आया करते थे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में पैदल आया करते थे। सहाबे किराम ने जब उनकी परेशानी देखी तो कहा, मेरे भाई एक सवारी क्यों नहीं खरीद लेते, कोई खच्चर खरीद लो, गधा खरीद लो या ऊँट खरीद लो, उस सवारी पर बैठ करके नमाज़ पढ़ने के लिए आया करो। और अगर तुम्हारे पास ताकत ना हो तो हम सारे नमाजी मिल करके तुम्हारे लिए एक सवारी खरीद लें। वो कहते हैं, मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है सवारी ख़रीदने की, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं सवारी ख़रीद सकूं, मैं ऊँट खरीद सकूं, मैं घोड़े खरीद सकूं, लेकिन मैं इसलिए आता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी पैदल चल के मस्जिद में आता है, जय कदम चलता है, एक कदम के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गुनाहों को माफ़ कर दे रहा है और उसके नामे अमाल में एक नेकी लिखता है। इसलिए मैं बड़ी दूर से आता हूँ और मैं कई हज़ारों पैदल चल करके मैं आता हूँ, मेरे कदम पड़ते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे कदम के बदले, एक एक कदम के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। इस तरीके से मोहब्बत पैदा करो, नमाज से मोहब्बत पैदा करो मेरे भाइयों। अल्लाह जब नमाज से मोहब्बत पैदा करोगे तो यकीन मानो